Any doubts in text questions? किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कोई? ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहां से हमें शुरू करना है. So metals have this tendency to lose electrons from the outermost shell of their atoms and form positively charged metallic ions. For example, potassium loses 1 electron, forms K plus ion. Calcium loses 2 electrons and forms Ca2 plus ion. Aluminium loses 3 electrons from the outermost shell and forms Al3 plus ion. However, the tendency to lose these valence electrons varies from metal to metal. Consequently, the metallic elements can be arranged in decreasing order of their tendency to lose valence electron. That means there is a reactivity series of metals you might be aware about. In the reactivity series of metals, the metals at the top are very reactive. That means they lose their electrons very easily. So potassium, sodium, they are kept at the top. Platinum, gold, they are kept at the bottom because they don't lose the electrons so easily. Okay. This is the electrochemical series or reactivity series which we are talking about. Sodium gets converted into Na plus much more easily than copper to Cu2 plus. You see that? Sodium is higher above copper. इसका मतलब क्या है? सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट होना ज़्यादा ईजी है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू कॉपर. कॉपर भी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, कॉपर Cu2 प्लस के आयन में कन्वर्ट होता है, बट इट्स नॉट सो ईजी फॉर कॉपर एज कंपेयर्ड विथ सोडियम. And zinc becomes Zn2 plus more easily than silver or Ag to Ag plus because zinc is higher above in the electrochemical series. ठीक है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के हमें ये समझ में आता है कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान है. ठीक है. Based on the ease with which the atoms of the metals lose electrons to form positively charged ions, the metals are arranged in a series known as electrochemical series. So what knowledge or what conclusions can we draw from electrochemical series? A metal with a higher position in the series displaces the one with a lower position. That is, a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. तो higher जो रहेगा वो more reactive होगा. Metals below hydrogen cannot displace hydrogen from acids while those above it can. हाइड्रोजन भी है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. यहाँ पे अगर तुम देखो तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स है वो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं. दैट इज वाटर और बेस और एसिड. ठीक है. एनी हाइड्रोजन containing compound can react with all the metals which are placed above hydrogen. But what about those which are below hydrogen? They cannot react with any hydrogen containing compound like water, acid or base. Elements lower in the series gets discharged more easily at cathode during electrolysis because their cations can easily gain electrons. Here where the game is changing and you need to pay some extra attention. What they are talking about now is not the criteria of losing electrons. No, they are talking about criteria of gaining electrons. So they are saying the metals which are below in the electrochemical series can gain electrons easily. You must be thinking that ये तो metals है, gaining electron का तो सवाल ही नहीं होता है. You are right in a way. But understand that we are not talking about metallic atoms. We are talking about metallic ions which are already present by the way of dissociation into electrolyte. Electrolyte में atoms होते ही नहीं है, ions होते हैं. तो electrolyte में suppose मेरे पास copper का ion है, ठीक है,
और उसके साथ साथ सोडियम का आयन है। मतलब मैंने कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर का एक्वस सोल्यूशन बनाया है। एंड इफ आई पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस सोल्यूशन, तो कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को। मतलब कॉपर और सोडियम दोनों अट्रैक्ट होंगे, लेकिन दोनों से प्रेफरेंस किसको मिलेगा कैथोड पे डिस्चार्ज होने का, डिपॉजिट होने का, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, जो नीचे है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन है? कॉपर। सो द एलिमेंट्स whose ions are down below in the electrochemical series get preferential discharge at the respective electrode, whether they are metallic or non-metallic ions. Non-metals का भी ऐसा electrochemical series होता है, तो उसमें भी जो नीचे है उसको preference मिलता है. The radicals or the ions which are below in the electrochemical series get preferential discharge at the respective electrode. इसको याद रखना, क्योंकि हमें रिवर्स प्रोसेस करना है. रिवर्स क्या करना है? ओरिजिनल प्रोसेस में मेटालिक एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म आयंस. इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस में, मेटालिक आयंस गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम न्यूट्रल एटम्स. तो जिसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट होगा. तो ऊपर वाले जो रिएक्टिव एटम्स है वो लूज तो इजीली कर देते हैं, गेन नहीं कर पाते इजीली. और नीचे वाले जो मेटालिक आयंस है वो इजीली लूज नहीं करते, लेकिन गेन इजीली कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स वंस दे आर इन द आयोनिक फॉर्म. Metal atoms which form their ions most easily will accept the electrons back to form the atoms with greatest difficulty, जो अभी मैंने बताया. So this statement is applicable for all the elements which are higher above. Yes, please sit in the next. And hello, listen to me. Hydrogen has some properties of a metal. For example, formation of positive ion. Thus, its position among metals confirms its identity with metals. Therefore, it has been placed along with metals in the series. ठीक है? So, this is all about the electrochemical series of metals. वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है एनायंस की. एनायंस की मतलब नॉन मेटालिक आयंस या रेडिकल्स की. Anions are negatively charged ions. On electrolysis, they move towards anode, positively charged electrode. They lose their extra electrons or negative charge at the anode and are discharged there. But all anions do not have identical tendency to lose electrons. Generally, non-metallic radicals या ions की जो tendency होती है, that is to gain electron. Non-metallic atoms की tendency होती है to gain electrons and to become negatively charged ions. जो सबसे इजीली गेन करता है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए उतना ही डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना. नॉन मेटालिक आयंस की बात कर रहा हूं. ठीक है? सो ऑन द बेसिस ऑफ द टेंडेंसी to lose electrons and get discharged at anode, anions have been arranged in the increasing order. So this is the electrochemical series of anions. As you see on the top, there is sulfate, then there is nitrate, then there is chloride, bromide, iodide and hydroxide. सबसे नीचे कौन है? हाइड्रोक्साइड. तो अगर दो या दो से ज्यादा नॉन मेटालिक नेगेटिव रेडिकल्स या आयंस प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो सबसे नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसको प्रेफरेंस मिलेगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होने का, एनोड पे डिस्चार्ज होने का. अब सबसे नीचे यहाँ पे OH माइनस. सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये, मोस्टली हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दे आर एक्वस सॉल्यूशंस. एंड यू नो एक्वस सॉल्यूशन कंसिस्ट्स, जैसे कि सपोज मेरे पास, आई आस्क यू कि अगर मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ NaCl, तो उसमें कौन से आयंस होंगे? Na प्लस, कॉमा, Cl माइनस, कॉमा, H प्लस,
एंड OH माइनस। ठीक है, H प्लस या H3O प्लस भी बोल सकते हो, NOH माइनस। अब इसमें मुझे बताओ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस कौन से हैं? Cl माइनस एंड OH माइनस। ये दोनों में कंपटीशन होगी, रेस लगेगी, कौन जाएगा एनोड पे, कौन जीतेगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगा? जो नीचे है। तो हमेशा एक्वेस सोल्यूशन में तो OH माइनस होना ही है, और सबसे नीचे तो वही है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसको ही मिलेगा। तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है, वही जीतने वाला है हमेशा। तो OH माइनस जब एनोड पे जाता है तो क्या होता है? सो एट एनोड, देखो ये स्टोरी भी आगे पता चलेगी, बट अभी बता देता हूं मैं तुम्हें। एट एनोड OH minus goes. Now anode is a positively charged electrode, positive terminal. That means it has deficit of electrons. So anode पे जाके OH minus क्या करेगा? It will become OH plus 1 electron. मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से सेपरेट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब सेपरेट हो जाएगा, वही एक इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके पास नेगेटिव चार्ज था, वही वो हटा देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज हट जाएगा उससे। So we'll be left with just ONH. ONH is one electron of one atom of oxygen and one atom of hydrogen. But this is not a compound. Neither their atoms are stable. They cannot exist on their own, right? So what will happen that not only a single OH minus will go and deposit or liberate at anode. There will be one more. So और एक OH माइनस जाएगा इसके पीछे पीछे, और वो भी जाके एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एनोड को। तो अब अपने पास क्या हो गया? OH प्लस OH। नाउ व्हाट इज OH प्लस OH? इट इज H2O प्लस O, है कि नहीं? H2O प्लस O। बट H2O प्लस O में H2O तो स्टेबल है, इट इज वाटर मॉलिक्यूल, वो वापस चला जाएगा तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट में, विच इज ऑलरेडी मेड अप ऑफ H2O aqueous solution. But ये O क्या है? This is nascent oxygen which is again unstable. So what will happen? One more OH minus, in fact, two more OH minus will get liberated at anode, and two more OH will be created, two more electrons will be donated, and two more OH will again uh, merge to form H2O plus O. And this total, you can say, outcome will be giving us O plus O, which is O2. तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अब जाके क्रिएट होगा कहाँ पे? एनोड पे, एंड विच विल लुक लाइक अ बबल। तो बबल्स दिखेंगे हमें एनोड पे, तो वो बबल्स किसके हैं? O2 के। H2O कहाँ चला जाएगा? ट्रिकल डाउन होके वापस इलेक्ट्रोलाइट में गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? सो 4 OH माइनस और 4 इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट होते हैं तब जाके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। और ये किस में होता है? किसी भी एक्वेस सोल्यूशन में। एनी एक्वेस सोल्यूशन हैज टू हैव दिस थिंग। ठीक है, एक एक्सेप्शन है इसमें। अगर ऐसा हुआ कि एक्वेस सोल्यूशन है लेकिन उसमें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर्ड विथ अदर लिक्विड, मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसमें पानी है लेकिन बहुत कम है, 90% एसिड है, 10% वाटर है। तो ये तो एक्वेस सोल्यूशन ही है, लेकिन हम लोग इसको, इसमें जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपेयर टू एसिड बहुत कम है, तो इसमें OH है लेकिन कम है। तो इस केस में जो दूसरा, जैसे सपोज ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तुम्हारे पास, तो तुम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मिलना चाहिए OH माइनस को, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आता है, लेकिन उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है OH माइनस का। तो अब रेस कौन जीतेगा? जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो किसका ज्यादा है? Cl माइनस का, तो Cl माइनस डिस्चार्ज होगा। Cl माइनस का भी सिंपल है, Cl माइनस जाएगा एनोड पे, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, Cl बनेगा नेसेंट क्लोरीन विच इज अनस्टेबल, वन मोर Cl माइनस विल गो बिहाइंड इट, will give one more electron and will become Cl. Cl plus Cl will give you Cl2, which is a chlorine gas. Greenish yellow color का गैस होता है क्लोरीन, वहां पे लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, so this is what actually happens in electrolysis.
सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस में हमें दो चीजें कंक्लूड करनी है कि lower the position of an anion in the series, more easily it gets discharged at anode, and higher the position of an anion in the series, more difficult for it to get lose electron and get discharged or oxidized at anode. Some solved problems. कुछ ये FAQs जैसा दिया है, frequently asked questions. जनरल डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, तो ऐसे क्वेश्चंस बना के दिए हैं. कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन आयन vessel? So think about it. Copper sulfate in iron vessel, no, you cannot do that, because copper is in the electrochemical series is below iron, so it is less reactive than iron. Iron is more reactive than copper, so iron will successfully displace copper from its salt solution. Copper sulfate, which was blue in color, will become green in color, and the solution will become iron sulfate solution, and copper will get displaced. So you should not store. ठीक है. On electrolysis of dilute copper 2 sulfate solution, copper is deposited at cathode, but why not hydrogen gas is evolved over there? So the reason is very simple. Cathode will attract all the positive ions, but the ion which is lower in the electrochemical series of cations or metallic ions or positive ions will get the preference to get discharged at cathode. So if you see the electrochemical series of positively charged ions, copper is below hydrogen. Since copper is below hydrogen, it will get the preference, right? So that's why copper gets easily reduced to metallic copper and gets deposited at cathode then rather than hydrogen to hydrogen gas. When a dilute aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अभी बताया मैंने कौन से आयंस होंगे, Na+, Cl-, H+, OH-. बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज किए, प्लैटिनम. मैंने बताया था कल प्लैटिनम कैसे होंगे इलेक्ट्रोड, इनर्ट या एक्टिव. इनर्ट, एक्टिव नहीं होंगे. एक्टिव कौन होता है, कॉपर होता है, ग्रेफाइट भी नहीं होता है, सिल्वर होता है, इन सम केसेस सिल्वर होता है. ठीक है. हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एट द कैथोड. कैथोड पे कौन इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस. बट मेटालिक सोडियम इज नॉट डिपॉजिटेड. व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज बिलो sodium in the electrochemical series, so it gets preferential discharge. Zinc can produce hydrogen on reacting with acids, but copper cannot, because zinc is above hydrogen in electrochemical series. Copper is below hydrogen. So if you put a piece of zinc in an acid, it can release or liberate hydrogen, but copper cannot do that because of the position in electrochemical series. यहाँ पे reaction के साथ बताया. So ये जो प्रेफरेंशियल या सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. एक तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल और एक्टिविटी सीरीज, जो नीचे होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा, पहला. सेकंड, द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, जो भी मैंने बताया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है. थर्ड, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. ये बहुत ही यूनिक है चीज. इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं तुमको, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपेंड करता है कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा. सो सपोज मेरे पास एक वेसल है. ये वेसल को क्या बोलते हैं, कल ही मैंने पूछा था. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक वेसल, नॉन कंडक्टिंग वेसल होता है ये. ठीक है. ये जो सपोज ये पॉजिटिव एनोड है और ये कैथोड. ये जो सोल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4, ब्लू कलर का सोल्यूशन है. ये दोनों एनोड और कैथोड कॉपर से बने हुए हैं. इलेक्ट्रिसिटी तो पास करता ही है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
तो इसको बैटरी से अटैच करके इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इसके अंदर। अब क्या होगा, देखो ध्यान से समझना इसको। कॉपर का जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन, अपने पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा। किसको? एनोड को। एनोड के पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो कॉपर का एटम है, यहाँ पे कॉपर से ही बना है ये, तो वो कॉपर का एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एनोड को, और वो खुद कॉपर के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कॉपर का एटम कॉपर इलेक्ट्रोड से कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो एंट्री लेगा। कैसे? Cu2+ बन के, Cu2+। ये कहां से आया Cu2+? कॉपर के इलेक्ट्रोड से। कॉपर सल्फेट में ऑलरेडी Cu2+ था, SO4 2- था, राइट। SO4 किससे बना है? Cu2+, SO4 2-। करेक्ट। तो यहां से ऑलरेडी कॉपर के कुछ एटम्स Cu2+ बन के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये Cu2+ जाएगा कहां पे? अब ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, लेकिन कॉपर सल्फेट का है, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि कॉपर का आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे किसी को जाने नहीं देगा, वो खुद ही वहां पे माइग्रेट करेगा। सो ये खुद जाके वहां पे चला जाएगा और उधर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये Cu2+ वहां पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यू विल सी न्यू एंड न्यू कॉपर गेटिंग डिपॉजिटेड ऑल अराउंड, ऑल ओवर दिस कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड। हाँ, तो एनोड धीरे 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 खत्म हो जाएगा, कॉपर धीरे 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 थिक होता जाएगा, राइट। जब ये एनोड पूरा खत्म हो जाएगा तो अपने आप करंट फ्लो करना भी बंद कर देगा। अब इस केस में क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ये एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स कौन, नेगेटिव आयंस कौन से हैं? सल्फेट आयन है अपने पास, और कौन सा है? OH-। पॉजिटिव आयंस कौन से हैं? Cu2+ और H+। इसमें नीचे कौन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? Cu2+। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज भी उसको मिलेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है, तो ऑफकोर्स Cu2+ डिस्चार्ज होगा कहां पे जाके? कैथोड पे। लेकिन एनोड पे ना तो सल्फेट ना तो हाइड्रोक्साइड, दोनों में से किसी को डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एनोड तो खुद बिजी है अपने आप को डिसइंटीग्रेट करने में। एनोड खुद कॉपर से कन्वर्ट होके Cu2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, खुद डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है एनोड। तो क्या इस केस में उसके ऊपर कोई डिस्चार्ज कुछ होगा? कोई भी चीज डिपॉजिट होगी? नहीं होगी। मतलब किसी आयंस को किसी इलेक्ट्रोड पे अगर डिपॉजिट होना है तो वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर इलेक्ट्रोड खुद एक्टिव है तो वो किसी आयंस को अपने ऊपर डिपॉजिट नहीं होने देंगे, या अगर डिपॉजिट होने देंगे तो वो खुद डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल और इलेक्ट्रोड्स का नेचर। तो इस केस में इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है कि विच आयन विल गेट डिस्चार्ज। तो इसलिए 3 फैक्टर है, ये तीसरा वाला फैक्टर था जो हमने डिस्कस नहीं किया था। 3 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन, दैट इज रिलेटिव पोजिशन ऑफ आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग एवरीथिंग बिकॉज एक्सप्लेनेशन कवर्स एवरीथिंग। अच्छा, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के और भी एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर कॉपर, निकल, सिल्वर। निकल भी एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, कभी कभी यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, तुम्हारी बुक में है एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, गिव रीजंस आते हैं बहुत सारे, ये जो जितने भी प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उसके ऊपर। ठीक है, सो वी हैव टू जस्ट
गो थ्रू के है क्या क्या कर रहे हैं और क्यों, वाई दे हैव चोजन सर्टन सेटअप, उसके ऊपर जो भी रीजन है वो हमें याद करना है। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड एक्सप्लेन किया है, PbBr2। टेम्परेचर क्या सेट करेंगे हम लोग, अबाउ 380 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PbBr2 इज मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस हीटिंग बाय अ बर्नर। तो नीचे से इसको कंटिन्यूअसली हीट चाहिए। जनरली एक्वस सोल्यूशन में हीट देने की जरूरत नहीं होती है, बट दिस इज मोल्टन लेड ब्रोमाइड, उसको मोल्टन स्टेट में रखना पड़ेगा तो ही इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू होगा। अगर वो मोल्टन स्टेट में नहीं है तो आयंस मूवेबल नहीं होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। So to keep it in molten state, you have to heat it and maintain a temperature of 380 degrees Celsius. तो question ऐसा आ सकता है, why a certain amount of temperature is maintained in the electrolysis of molten lead bromide? ऐसे करके question आ सकता है। Electrolytic cell, इसके ऊपर भी question आ सकता है। Crucible मतलब वो जो vessel है जिसके अंदर electrolysis होता है, it is made up of silica because silica is non-reactive. Why silica is used? Silica is non-reactive, withstands high temperature and is almost a non-conductor of electricity. Right? Reason मिल गए। Electrodes, cathode and anode are both made up of graphite plates which are inert. They are connected by copper wires to the two ends of a battery. करंट 3 एम्पियर का होगा। आयंस कौन से प्रेजेंट है हमें पता है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड है तो Pb2+ और Br-, उसके सिवा तो कोई आयंस है ही नहीं, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, ना कोई पॉजिटिव आयन से दूसरा, ना कोई नेगेटिव आयन है, यही दो है तो यही दो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन इवॉल्व एट एनोड, गैस होता है ब्रोमीन, और ग्रेइश व्हाइट मेटल लेड इज फॉर्म्ड एट द कैथोड। Explanation. When the current is turned on, the positive lead ions migrate towards the cathode. They take 2 electrons each and become neutral lead atoms. The negative bromide ions come in contact with anode, give an electron each and become bromine atoms. These two atoms combine to form bromine molecule. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक ब्रोमीन जाता है एनोड पे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ब्रोमीन एटम बनता है, बट दैट्स हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। सो उसके साथ साथ और एक बार यही सेम चीज प्रोसीड होती है एंड टू ब्रोमीन दे इवेंचुअली कंबाइन टू फॉर्म अ ब्रोमीन मॉलिक्यूल विच इज स्टेबल इन अ गैसियस फॉर्म। नोट में देखो क्या क्या लिखा है, since silica is non-reactive, hence an electrolytic cell is made up of silica. It can withstand high temperature and almost a non-conductor of electricity. The silica crucible is heated slowly from outside. Solid lead bromide is a non-conductor of electric current since its ions are not free but held together by electrostatic force of attraction. The ions becomes free when lead bromide is in fused or molten state. Hence, the crucible is heated from outside to keep the lead bromide in molten state. Graphite anode is preferred to other inert electrodes such as platinum, since graphite is unaffected by reactive bromine vapors. Bromine is a non-metal which is highly reactive. It is a part of group number 17, halogens, and that's highly reactive. So we always prefer graphite electrodes here, not platinum. Electrolysis of acidified water using platinum electrodes. Acidified water मतलब वाटर में कुछ ड्रॉप्स डालेंगे एसिड के, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसको, ये जो सेटअप है इसको हॉफमैन्स वोल्टामीटर भी बोलते हैं, बहुत फेमस है ये, ऐसा कुछ सेटअप है ये। तो इसमें दो ट्यूब्स होती है, उसके अंदर हमने नीचे से इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट किया हुआ होता है थ्रू रबर कॉर्क, तो मतलब पानी वहां से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम के हैं, और ये जो दो इन्वर्टेड ट्यूब्स हैं, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब्स, ये दोनों ट्यूब एक पाइप से कनेक्टेड है। ये पाइप दिख रहा है, पाइप यहाँ पे दिखा है, दिस इज द कॉमन पाइप विच इज कनेक्टेड बोथ द इन्वर्टेड ट्यूब्स। ट्यूब उल्टी है, इन्वर्टेड है, लेकिन ऊपर से भी तुम देखोगे तो स्टॉपर है, दिख रहा है स्टॉपर। ये स्टॉपर क्यों लगा है पता है, बिकॉज जो गैस है वो ये एम्प्टी जगह में कलेक्ट होगा, तो गैस को निकालना पड़ेगा ना, हमको गैस चाहिए अगर, तो गैस को रिलीज करने के लिए यू ओपन द स्टॉपर एंड कलेक्ट द गैस। सो फॉर कलेक्शन ऑफ गैस दो स्टॉपर्स आर गिवन ओवर देयर। अच्छा,
ये जो कॉमन बीच में सिलेंडर और या पाइप दिया हुआ है, उसके साथ और एक सिलेंडर अटैच्ड है जिसके अंदर से हम फीड सप्लाई करेंगे। फीड मतलब वाटर, इसमें फीड हम सप्लाई करेंगे, वाटर डालेंगे बीच में जो खाली जगह है उसमें, तो वाटर पूरा भर जाएगा, वो कनेक्टिंग पाइप के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड्स, दोनों इन्वर्टेड ट्यूब्स में चला जाएगा इलेक्ट्रोड्स के पास, एंड देन वी पास इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड्स। तो इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे हो रहा है एसिडिफाइड वाटर का, दैट इज वाटर प्लस डाइल्यूट H2SO4। अब इसमें डाइल्यूट H2SO4 क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल एसिड, while dilute nitric acid or hydrochloric acid are volatile. Volatile matlab they evaporate automatically on their own at room temperature. That is not preferred. That's why we use sulfuric acid. Sulfuric acid is like oil. Oily होता है वो खुद evaporate नहीं होता, volatile नहीं होता। इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं प्लैटिनम की फॉइल्स विच आर इनर्ट कनेक्टेड बाय कॉपर वायर्स टू टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। करंट है 3 एम्पियर का। डिसोसिएशन ऑफ वाटर। So water is a non-conductor of electricity. Which water are they talking about? Distilled water. Distilled water में सिर्फ molecules होते हैं। Self ionization शुरू नहीं होगा जब तक तुम impurity add नहीं करोगे। हमारा discussion हुआ था इसके ऊपर last time. It consists almost entirely of molecules. It is a polar covalent compound and can form ions. Can form ions. Forms ion and can form ion में बहुत फर्क है। Can form ion in certain conditional है ये, when traces of dilute sulfuric acid is added, as dilute sulfuric acid catalyze this dissociation, hence electrolysis of acidified water is considered as an example of catalysis. Catalysis क्यों है ये? क्योंकि dilute sulfuric acid ऐड करने से ions फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, आयोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, नॉट डिसोसिएशन। यू कांट कॉल इट डिसोसिएशन because neither H2SO4 might contain ions, but that too in the presence of some polar covalent molecule like water. तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं आयंस बनाने के लिए, that is ionization. So as dilute sulfuric acid catalyzes this dissociation, hence electrolysis of acidified water is considered as an example of catalysis. आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिफाइड वाटर में होता क्या है? पहले H2O ब्रेकअप होता है। H2O ब्रेक होके किस में कन्वर्ट होता है? H प्लस और OH माइनस में। क्लासिक है ये, तो पहले ही हमने पढ़ा था। H2SO4 ब्रेकअप होता है, आयोनाइज होता है किसमें? 2H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो आयंस कौन से प्रेजेंट होंगे? H प्लस होंगे, बहुत सारे H प्लस आयंस है यहाँ पे। OH माइनस आयंस होंगे कुछ, SO4 2 माइनस, ये सारे आयंस है। पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट होंगे? H प्लस, OH माइनस, SO4 2 माइनस, ये हमने पहले ही देखा है, और कुछ H2O। व्हाट इज दिस H2O and why is it there? So depending upon the amount of impurity you are adding into the water will get ionized. If you add a little amount, only a little amount of water will get ionized. With a little amount of sulfuric acid, only little amount of water will get ionized. So the water will contain H2O molecules in certain amount. Yeah, but with that there will be H plus, OH minus and SO4 2 minus also. So cathode पे क्या होगा? Cathode is a negative electrode, तो cathode पे competition होगी सारे पॉजिटिव आयंस की, लेकिन अगर तुम देखो तो पॉजिटिव आयंस में कोई कंपटीशन है ही नहीं, सिर्फ H प्लस अकेला पॉजिटिव आयन है, तो वो जाएगा सीधा कैथोड पे। कैथोड पे जैसे ही H प्लस जाएगा क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H बन जाएगा, विच इज अनस्टेबल, हाइड्रोजन का एटम अनस्टेबल होता है, और एक H जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड इट विल बिकम H2। तो दो इलेक्ट्रॉन के गेन से क्या बना? H2 बन गया। दो इलेक्ट्रॉन के गेन से, याद रखना है इसको, ठीक है? तो ऐसे दो दो के पेयर में इलेक्ट्रॉन जब गेन होते रहेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, वो H2 बनाता रहेगा। और वो H2 कहां पे जमा होगा? ये कैथोड के ऊपर ही जो जगह दिख रही है ना तुम्हें, जो स्पेस दिख रही है, खाली स्पेस, यहां पे ये एक्यूमुलेट होता रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है? अच्छा, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कंपटीशन होगी,
SO4 2 माइनस और OH माइनस की, लेकिन जीतेगा कौन कंपटीशन? OH माइनस, of course, because it is lower in the electrochemical series, so it will get preferential discharge. तो वो जाएगा वहां पे OH माइनस, और मैंने तुम्हें बताया था OH माइनस की पूरी स्टोरी. Did I tell you the whole story of OH minus earlier? Where is it? Yeah, over here. OH माइनस 4 बार, 4 OH माइनस जब जाएंगे तब जाके एक H2O, सॉरी 2 H2O और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा. तो 4 OH माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तब जाके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा? 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. और उधर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनाने के लिए? 2. आर यू गेटिंग? थोड़ा सिंक्रोनाइज करके सोच के देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं. मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि एट द सेम टाइम when OH minus is donating 4 electrons and making 1 oxygen molecule, hydrogen is accepting 4 electrons and making 2 hydrogen molecules. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेन देन होती है. मैं तुम्हें बताया था ये वो स्वांते एरहेनियस की जो थियरी थी ना, उसमें मैंने बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. इलेक्ट्रोलिटिक इक्विलिब्रियम मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड से हम लोग एनोड को हम लोग डोनेट करते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय पॉजिटिव पार्टिकल्स और आयंस. तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स OH माइनस ने डोनेट किए तो 4 इलेक्ट्रॉन H प्लस एक्सेप्ट करेगा. लेकिन यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद सिर्फ एक मॉलिक्यूल बन रहा है ऑक्सीजन का, और वहां पे कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं हाइड्रोजन के? 2. मतलब रेशियो क्या हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? 1:2. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1:2. जब 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन बनता है उतने ही टाइम में उतने ही इलेक्ट्रॉन से 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन बनता है. और इसी रीजन से यू विल सी दिस स्टार्क डिफरेंस. यू सी दिस डिफरेंस. हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम लिखा हुआ है और ऑक्सीजन कितना लिखा है? 1 वॉल्यूम. तो जस्ट इमेजिन कि अगर हाइड्रोजन 2 लीटर हाइड्रोजन मिलता है हमें ये प्रोसेस से, तो ऑक्सीजन कितना लीटर मिलेगा? 1 लीटर. ऑलवेज because of this reason, this is the reason behind it, we should acknowledge it. ठीक है, तो ये सब हो गया. यहाँ पे OH माइनस पे आ गए. अब यहाँ पे बोला है एक और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ. 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. Since SO4 2 minus ions migrate to anode and H plus ions will have been discharged at anode, the concentration of sulfuric acid will decrease at cathode. क्योंकि सारे SO4 2 minus ions तो चले गए एनोड के पास डिस्चार्ज होने के लिए. उनको डिस्चार्ज होने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी जगह ले ली हाइड्रोजन ने. H प्लस डिस्चार्ज हो गया. तो ये सारे क्या करते हैं वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं. डिस्चार्ज नहीं होते बट एनोड के पास चले जाते हैं. तो जो एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो कैथोड पे कम हो जाएगा क्योंकि सारे एसिडिक जो आयंस है वो सारे चले गए एनोड के पास. The discharge of OH minus disturbs the ionic equilibrium of water, and to maintain it, more water ionizes. मतलब क्या है कि हमको ये जो H प्लस आयंस ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं कैथोड पे, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा. तो वाटर खुद अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है. अब ये अपनी सेल्फ आयनाइजेशन प्रॉपर्टी दिखाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल इंप्यूरिटी लाइक सल्फ्यूरिक एसिड. सेल्फ आयनाइजेशन मतलब अब वाटर ब्रेकअप होगा. अब वाटर ब्रेक होके ज्यादा से ज्यादा H प्लस और OH माइनस आयंस सप्लाई करेगा. तो जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में था वो भी अब ब्रेक होना शुरू हो जाएगा बिकॉज SO4 2 माइनस आयंस तो अभी भी है पानी में. H प्लस आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं. तो मोर एंड मोर वाटर विल आयनाइज ऑन इट्स ओन.
The excess of H plus ions thus produced and the SO4 2 minus ions present increases the concentration of sulfuric acid at the anode. Thus, there is a decrease in acidity at cathode and increase in acidity at the anode. तो ये एक यूनिक चीज होता है. इसके ऊपर ऐसा कोई ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे. इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन which is seen in this experiment. Ratio. In the electrolysis of acidified water, anode OH minus at anode OH minus loses one electron and becomes neutral OH. The combination of OH forms water with the liberation of oxygen. Since 4 OH neutral particles are involved in the equation, so 4 electrons are lost in order to get 4 OH neutral particles. Thus, the formation of one molecule of oxygen at anode releases 4 electrons. And there is no buildup of electrons in any part of the circuit. The reaction of cathode must take up 4 electrons at the same time, which is 4H plus takes up 4 electrons and gives out 2 hydrogen molecules. This shows that the number of molecules of hydrogen is twice that of oxygen molecules, and according to Avogadro's law, molecules can be substituted by volumes. Equal volumes of different gases. मैंने कुछ उल्टा से एवोगाड्रोस लॉ बताओ जल्दी जल्दी. हाँ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. याद है? हाँ, तो they have cited that law here. Why? Because everything is connected after all. Avogadro's law यहाँ भी हम लोग apply कर सकते हैं definitely. Hence, electrolysis of water gives 2 volumes of hydrogen and 1 volume of oxygen. So ये तुम्हारा final हो गया. Then electrolysis of copper sulfate solution using platinum anode and copper or platinum cathode. Anode platinum का है, लेकिन कैथोड कॉपर का भी हो सकता है, प्लैटिनम का भी हो सकता है. अब ऐसा क्यों है ये मैं तुम्हें बताता हूं. मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था जहां पे एनोड कॉपर का लिया था और वो एनोड धीरे 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 डिप्लीट होता था. वो क्या करता था पता है? वो सप्लाई करता था कॉपर के आयंस को किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर. और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया था हमने वहां पे? कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है? वो और ब्लू बनेगा और ब्लू ही रहेगा इन केस यू हैव टेकन एनोड एज अ कॉपर. बट इस केस में तो एनोड कॉपर है नहीं. कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी तुम पास कर रहे हो, तो कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन माइग्रेट होगा? एक्वेस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का. तो तुम्हारे पास पॉजिटिव आयंस के दो ऑप्शन है, एक तो Cu2+ है और एक H+ है. कौन जाएगा? किसको प्रेफरेंस मिलेगा? Cu2+, बिकॉज इट्स बिलो इन द एक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. सो धीरे धीरे जितने भी कॉपर के आयंस इलेक्ट्रोलाइट में है वो सारे कैथोड की तरफ जाके माइग्रेट करके उधर डिस्चार्ज होने लगे. सो धीरे धीरे पूरे इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल फॉल. सॉरी, कॉपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल फॉल. Since the concentration of copper is falling, the amount or the number of copper ions are falling, the color of copper sulfate solution will become pale blue, and slowly it will become more and more light. Dark blue से pale blue बन जाएगा और lighter होता जाएगा जैसे ही कॉपर सारे निकलने लगेंगे. बिकॉज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो हमने पढ़ा था एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ब्लू क्यों होता है? कॉपर सल्फेट ब्लू क्यों होता है? Cu2+ की वजह से. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम आयंस ही तो पता लगाते हैं कि किसी भी अननोन सब्सटेंस में कौन से आयंस हैं, मेटालिक आयंस है, नॉन मेटालिक आयंस है, कौन से आयंस है, उसका कलर किसकी वजह से. तो यहाँ पे Cu2+ की वजह से ब्लू कलर. Cu2+ ही नहीं है तो ब्लू कलर रहेगा? नहीं रहेगा, वो पेल हो जाएगा, फेड हो जाएगा. ठीक है, रिएक्शन सब कुछ दिया है. ओके, अब कॉपर जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा ना, तो यू विल सी अगर कैथोड प्लैटिनम का है, यू नो प्लैटिनम कैसा होता है? दिस इज प्लैटिनम. दिस इज प्लैटिनम, लुक्स लाइक सिल्वर.
बट इट्स प्लैटिनम, एक्सपेंसिव देन गोल्ड। और इस पे जब कॉपर डिपॉजिट होता है तो पूरा रेडिश ब्राउन बन जाता है। फुल कॉपर टर्न्स रेडिश ब्राउन, फुल प्लैटिनम टर्न्स रेडिश ब्राउन, मतलब उसके ऊपर कॉपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया हर तरफ से। ठीक है। When the deposition of copper ions is completed, then the electrolysis of water takes place. फिर शुरू होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे ही कॉपर सारा डिपॉजिट हो गया, अब किसकी बारी आएगी, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बोलेगा अभी मैं हो जाता हूँ डिपॉजिट या लिबरेट, तो जाके फिर वो बबल्स बनाएगा, वहां पे तुम्हें बबल्स दिखेंगे छोटे छोटे। ओके, so hydrogen gas is liberated at cathode and oxygen gas is liberated at anode. Blue color of copper 2 Cu2 plus ions in the electrolyte solution fades due to the decrease in Cu2 plus ions, and finally the solution becomes colorless as soon as Cu2 plus ions are finished. Finished मतलब सारे के सारे डिपॉजिट हो गए। ठीक है। अब ये तो हो गया तुम्हारा यूजिंग कौन सा इलेक्ट्रोड था ये, प्लैटिनम एनोड एंड कॉपर और प्लैटिनम कैथोड। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को कॉपर के बना देंगे। अब क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था धीरे धीरे, हाँ, एनोड विल बिकम थिन, कॉपर विल बिकम थिक, ऑल द कॉपर will get deposited from the anode to the cathode. And what about the color of the solution? It will not get fade. If it is blue, it will become more blue. If not more, then it will remain the same like as it is, because the concentration of copper ions will continuously be maintained by more and more copper being added into the electrolyte by the copper anode. ठीक है, डन। अब लास्ट पार्ट है, कैसा लगा, समझ में आया क्या इलेक्ट्रोलिसिस? ये मैं क्यों नहीं वीडियो बना रहा था, ये नहीं मजा आता, ये लाइव में मजा आता है ये चैप्टर में। बाकी सारे चैप्टर ठीक है, वो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एंड ऑल, बट दिस चैप्टर क्योंकि इस पे थोड़ा सा दिमाग लगता है, इट्स नॉट ओनली मगिंग अप एंड ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। और ऐसे कुछ ही चैप्टर है अपने पास केमिस्ट्री में जिसको थोड़ा समझ सकते हैं हम। तो इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स विदाउट रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स। मगर बट अगर स्टडी ऑफ कंपाउंड से कुछ आता है, you cannot score any marks without remembering everything what is there. So memory will play an important role in chemistry. Okay, so दो चीजें और करनी है अपने को, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और आई थिंक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी है। So electroplating क्या होता है? Electroplating is a process in which a thin film of a metal like gold, silver, nickel, chromium, etc. gets deposited on other metallic article which with the help of electricity. प्लेटिंग करते हैं हम लोग, डेलिबरेटली एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल प्लेट करते हैं। यस, कॉपर के ऊपर सिल्वर, सिल्वर के ऊपर गोल्ड, गैल्वेनाइजेशन, जिंक प्लेटिंग होता है, क्रोमियम प्लेटिंग होता है, स्टील के ऊपर क्रोमियम का प्लेटिंग होता है बिकॉज क्रोमियम इज वेरी शाइनी, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस। ओके, ठीक है। क्यों करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग? डेकोरेशन पर्पस के लिए करते हैं। Brass objects are frequently plated with silver to give them shining appearance and beauty of silver article. जनरली वो सिल्वर का बोलते हैं ना, चांदी की थाली में खाना, वो बहुत महंगा होता है वो सिल्वर। सो रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर, तो हमने सोचा कि वाह, चांदी की थाली मैं गिफ्ट करूंगा, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। एंड व्हेन आई आस्क्ड द रेट, ब्लडी चांदी का थाली का सेट, छोटा 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 बच्चों का एकदम, it was 14,000 rupees just for a thali, so that's very expensive. Yeah, so I didn't think about this that I could give him brass plated with silver, looks just like silver, shining appearance and beauty of silver article. To protect from rusting and corrosion, iron tools and instruments are often electroplated with nickel or chromium or zinc to protect them against rusting. So ये सब electroplating मतलब electrolysis से ही होता है। अच्छा, conditions for electroplating.
Number one, the article to be electroplated is always placed at the cathode. Article to be plated. With what do we have to plate that article? With some metal. ठीक है? And metal ions, if they are to be deposited or plated on any article, XYZ article, then metal ions कहां पे जाते हैं वो सवाल पूछो तुम अपने आप को. मेटल आयंस पॉजिटिव होते हैं तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे. नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है? मतलब आर्टिकल टू बी प्लेटेड कहां पे होना चाहिए? कैथोड पे. हमेशा हमेशा, ऑलवेज. द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज मेड एनोड. क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में तो मेटालिक पार्टिकल्स एक लिमिट तक तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में उतना सारा मेटल नहीं हो सकता जो पूरे आर्टिकल को प्लेट कर देगा. तो इसके लिए ये मेटालिक आयंस का एक सप्लाई होना चाहिए हमारे पास कंटिन्यूअस. वो कहां से मिलेगा? एनोड से. तो एनोड पे मेटल लगा दो, सिल्वर लगा दो, वो सिल्वर धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट में डिसइंटीग्रेट होके ऐड होता रहेगा और वहां से वो माइग्रेट होके जाएगा कैथोड के आर्टिकल के ऊपर प्लेट होता है. रीजन ये है, द मेटल एनोड continuously dissolves as ions in solution and it is replaced periodically. जब पूरा डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो गया मतलब अगर बल्ब रखा है सामने सर्किट में कनेक्टेड तो वो ग्लो होना बंद हो जाएगा. तो मतलब समझना एनोड पूरा मेल्ट होके डिसॉल्व हो गया, अब उसको रिप्लेस करके नया मेटल लगा दो. दैट्स हाउ इट इज डन. द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयंस ऑफ मेटल विच इज टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल. देखो अपने को इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे करना है, तो वी डोंट वांट एनी अनवांटेड कंपटीशन बिटवीन द आयंस बिकॉज वी नो दैट देयर इज अ कंपटीशन. तो इसका मतलब है अगर मुझे कॉपर का प्लेटिंग करना है तो मेरे इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर के आयंस ज्यादा होने चाहिए. तो मैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखूंगा ना, या मैं सिल्वर सल्फेट रखूंगा? नहीं. खारकर, राइट. अगर कॉपर का प्लेटिंग करना है तो मैं कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन लूंगा. क्यों मैं फालतू की कंपटीशन बढ़ाऊंगा सिल्वर क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या और कुछ लेके? तो मैं आई विल मेक श्योर दैट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, I will make sure that the salt solution which I select as my electrolyte should contain mainly the ions of the metals which are to be plated on the cathode. ठीक है. अगर सिल्वर प्लेटिंग करना है तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लूंगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड सो ऑन. A low current for a longer time should be used. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी एक आर्ट है. ठीक है. अगर तुम्हें इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छे से करना है, सपोज एक स्पून है, उसके ऊपर पूरा सिल्वर कोटिंग करना है, चांदी की चम्मच बनानी है तुम्हें, ठीक है, और तुमने करंट ऐसा हाई करंट पे छोड़ दिया और तुम्हें लगा जल्दी जल्दी प्लेटिंग हो जाएगा, मेरा रेडी हो जाएगा सिल्वर स्पून. वो स्पून नहीं रहेगा स्पून. इट विल बिकम लाइक अ चमचा, बिकॉज उसमें आड़ी टेढ़ी जगह पे सिल्वर डिपॉजिट होगा फटाफट फटाफट. So if you want an even smooth deposit throughout the surface of silver, the current should be minimum. ठीक है. The current should be low, minimum, and this process should continue for a long time. Low current for a longer time will ensure smooth, even deposit of the metal. A direct current and not alternating current should be used. All knows this. Everyone knows. Alternating current में इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं होता, प्लेटिंग कहां से होगा? AC current causes discharge and ionization to alternate at cathode and giving no effective coating. ठीक है. तो यहाँ पे वो लोग ने कुछ एग्जांपल्स दिए. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद सिल्वर. In order to get a perfect deposit of silver on an article, say brass spoon, the spoon is first cleaned and then washed in hot solution of caustic soda. Caustic soda is sodium hydroxide.
followed by dilute hydrochloric acid. ये पूरा washing process है, cleaning process है, and water, it is now thoroughly washed with detergent and several times with distilled water. इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले, नहीं तो कोई अनड्यू रिएक्शंस हो सकते हैं. Then the article to be plated is made cathode, and the metal to be plated on the article is made anode, and the solution of the electrolyte has to be taken in a way that it should contain the metal to be plated ions, that is silver ions. So solution लिया यहाँ पे सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड. सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड ये क्यों लिया है, और सोडियम सिल्वर नाइट्रेट ही क्यों नहीं लिया, इसका भी रीजन दिया है वो लोगों ने. Why they are taking sodium argentocyanide or potassium argentocyanide? Sodium silver cyanide is prepared by adding sodium cyanide to a solution of silver nitrate until the precipitate formed just dissolves. The negative ions, Cn minus and OH minus ions, migrate to anode, but none of them are discharged at anode. Instead, atoms of anode or silver lose electron and pass into the solution as silver ions due to the nature of anode. तो ये कौन से इलेक्ट्रोड है? Active electrodes है, क्योंकि they take part in the chemical reaction, electrolysis basically. Silver ions are attracted to brass spoons. Here they gain electrodes and become atoms of silver, which deposit on the spoon as firm coating. The thickness of coating will depend on the duration of current passed. Low current for higher time. The spoon is taken out of the bath, repeatedly washed several times with water, dried and polished, and then again put inside. If silver nitrate solution is directly used instead of double cyanide of sodium, that is sodium argentocyanide, and the silver, the deposition of silver will be very fast and hence not very smooth and uniform. इसलिए सिल्वर नाइट्रेट यूज नहीं करते, सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड यूज करते हैं. फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकल दिया है. Iron gets easily rusted when exposed to air. If iron articles are coated with metals like nickel, tin or zinc, rusting can be prevented. If nickel plating is to be done, iron article to be coated is made cathode and nickel plate is made anode. And the solution of nickel sulfate containing small amount of dilute sulfuric acid is used as electrolyte. Reaction हमको पता ही है क्या होने वाला है. ठीक है, ये भी इजी था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे बताना पड़े. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये हमने पढ़ा था मेटलर्जी चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर. मेटलर्जी में एक पार्ट था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. तो होता यह है कि जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, द मेटल्स obtained at the final stage, that is after रिडक्शन के बाद जो मेटल मिलता है, that is not 100% pure, that is 99.99% pure. तो उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना जरूरी है, उससे हमें 100% प्योर मेटल मिलता है. ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का यूज है, और इसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कॉपर के साथ. तो हमको प्यूरिफाई किसको करना है? कॉपर को. ठीक है, और हमें क्या चाहिए? प्योर कॉपर. ठीक है, तो यहां पे एनोड और कैथोड दोनों कॉपर से बने होने चाहिए, दोनों कॉपर से बने होने चाहिए. देखो, प्योर कॉपर कहां पे माइग्रेट करेगा? Cu2+, कैथोड पे. तो कैथोड शुड बी थिन स्लैब्स और थिन शीट्स ऑफ प्योर कॉपर. What will be your cathode? To begin with, thin sheets of pure copper. Thin sheets of pure copper. Anode, on the other hand, will be impure slabs of copper. Impure slabs of copper. ठीक है, तो क्या होगा? अभी जैसे ही कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, what will happen is the same thing like we discussed earlier. The copper ions will get into the copper सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द एनोड. एनोड धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, कॉपर आयन सप्लाई करने लगेगा. ये जो प्योर कॉपर आयन है वो जाएंगे कैथोड पे, जाके डिपॉजिट होने लगेंगे. तो जो थिन शीट थी ना प्योर कॉपर की, वो धीरे धीरे थिक बनती जाएगी.
प्योर कॉपर की थिक शीट बनेगी, और जो इम्प्योर कॉपर का स्लैब था जो एनोड था वो धीरे धीरे थिन होता जाएगा। जब पूरा कॉपर खत्म हो जाएगा तो नीचे यू विल फाइंड सम इम्प्यूरिटी सेटल डाउन, इसको बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड मतलब दैट 99.9% pure copper slab which contains 0.01% of impurity, that impurity is settling down, which we did not want at the first place. So electrolytic refining se we managed to obtain pure 100% pure copper slabs at the cathode. ठीक है, इवेंचुअली पूरा एनोड डिसअपियर हो जाता है। The net result is that gradually the impure slabs of copper get finished and thin strips of pure copper become thicker and thicker. The copper deposited at cathode is 99.9% pure. तो शायद इससे पहले purity कम होगी. After electrolysis is over, these strips are melted and transformed into desired shapes. Some impurities get dissolved in the acid, while others, namely silver and gold, which are insoluble, gets collected near anode or anode mud and are recovered. Metals like zinc, lead, mercury, silver, and copper are refined or purified by this process of electrolysis. Then there is electrometallurgy. Electrometallurgy we have already discussed in metallurgy chapter. There are certain metals at the top of the activity series like potassium, sodium, calcium, magnesium, and aluminium, which cannot be extracted by simple methods of reductions. रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं आते उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ता है. So we take a suitable electrolyte, as in the case of aluminum, you remember there is a D part, final part in the chapter of, not D part, yeah D part, second last part in the chapter of metallurgy. सिर्फ aluminium की electrolysis दी है वहाँ पे, Hall Heroult process, जहाँ पे I think fluorspar और aluminium oxide क्रेओलाइट का मिक्सचर को हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हमने एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया था. तो वैसे ही यहाँ पे रिएक्टिव मेटल्स का कैसे एक्सट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोलिसिस से, वो सब बताया है. पोटेशियम में पोटेशियम ब्रोमाइड, फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट पोटेशियम, उनका इलेक्ट्रोलिसिस से वी गेट प्योर पोटेशियम. सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, फ्यूज्ड मतलब मोल्टन. Magnesium is extracted from fused magnesium chloride. Aluminium is obtained by electrolysis of its oxide alumina, where gas carbon lining of electrolytic cell act as cathode and graphite rod act as anode. Electrolyte is pure alumina, craolite and fluorspar. इसका रेशियो भी हमें दिया था. तो कैथोड पे हमें प्योर एल्यूमिनियम मिलता है और एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलता है. ये ऑक्सीजन वो ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब ग्रेफाइट धीरे धीरे बर्न आउट हो जाता है. सो वी हैव टू periodically change the graphite. And lastly they have given the acid, bases and salts as electrolytes. Acids and bases जब भी alkalis basically water में dissolve करते हैं हम लोग, तो they dissociate and they dissociate in fused state or in aqueous solution state, and they make these free mobile ions, and they can be classified as strong or weak electrolytes depending upon the degree of dissociation. Degree of dissociation मैंने last class में बताया था, that is the extent up to which a compound can furnish ion in aqueous solution state. इसका यहाँ पे formula दिया है जो important नहीं है but still. तो यहाँ पे acid, bases और salts में strong और weak electrolyte का they have given this table which you can go through. So the chapter is completely over. सारे part एक एक चीज मैंने बताया है तुम्हें, and it will be completed by you only when you finish the exercise. And one more in text I think which we encountered. So we have around 20 more minutes. I want you to start with the second in text, not the first one, second one, because it is fresh in your memory right now, so it will be easier for you to complete. I'll stop the recording.